अच्छा, इसमें हमारे पास टू टाइप्स ए प्रोपोर्शन होते हैं, एक आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, एक आपका इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है. ओके, सो यू शुड बी केयरफुल इन दैट. यू नो व्हाट यू मीन बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन. ये डायरेक्टली होता है कि अगर एक चीज इंक्रीज होती है दूसरी होती है, इन्वर्स होता है एक चीज इंक्रीज दूसरी डिक्रीज। या तो आपने यू शुड बी केयरफुल ओवर देयर, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सारे वर्ड प्रॉब्लम के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन यूज करते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि सर आंसर गलत आ रहे हैं. तो यू शुड बी केयरफुल इन इनवर्सली प्रोपोर्शन एज वेल. आपने इनवर्सली प्रोपोर्शन को भी देखना है. ओके. जी। Okay, question number one. 5 cans of cola cost $1.20. Find the cost of 7 cans. First of all, you will need to check that it is in direct relation or inverse relation. Something to use with that is find the cost of service. Directly proportional है या ये। डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो क्या हो जाएगा आपका 5 cans. 1.20 divided by 5 multiplied by 7. इसमें ऑप्शन ज्यादा है। Yes. So from this you will get the final answer. Actually एक ही कंसेप्ट से उनको आपने याद करना है, उसके थ्रू आप 3 वेरिएबल्स वाले रेशो को भी कवर कर लोगे. ये 3 वेरिएबल्स वाले अच्छा। थे, यहाँ पे जो एक क्वेश्चन आया था तो उसको भी आप कवर कर लोगे. अच्छा। या एक्चुअली वो लास्ट टाइम हमने किया था. अच्छा, जब आपके पास डिक्रीजिंग आएगा, डिक्रीजिंग मीन यू विल डिवाइड इट. Increasing mean you will multiply it. Question number 1 को start कर लेते हैं by using this concept. Question number 1 में देखो, we need to find 5 cans of cola cost 1.20. Find the cost of 7 cans. तो फिर क्या मतलब increasing decreasing? अच्छा, wait. सबसे पहले आप इसको, so the 5 cans cost $1.20. Okay. Acha, there is a direct relation या inverse relation. If you increase the number of cans, then the cost will get increased. So there is a direct relation. If you increase this, then the cost will get increased. Okay. Okay. So what you will do? If I decrease 5, तो ये amount आपका decrease होगा या increase होगा? Increase. If you decrease this, क्योंकि relation same है. If you increase can, cost will increase. So if you decrease this, this will also get decreased. तो इसको आप 1 बना लो, then this will be equal to 1.20 divided by 5. Why divide by 5? Because decreasing के लिए हमने division करना है. So from this you will get 1 ratio something. क्या आ जाएगा? 1.20 times 1 divided by 5 कर लो. You will get $0.24. अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या करना है? The question is find the cost of 7 can. So if you want to bring 7 over here, what you will do? You will add 7, yeah, you will multiply 7. Multiply. Yeah, multiply 7 over here, and same you will do over here. So you will get 7 over here. So 7 cans will cost you 0.24 times 7. You will get 1.68. So this 1.68 is the final answer. Okay, this is the direct relation. अब inverse relation को देख लेते हैं. इसी concepts को आपने use करना है, direct relation. ये तो समझ आ गई थी. थ्री वे वाला क्या था? Actually inverse relation के लिए भी आपने इसी concepts को use करना है. Decreasing के लिए आपने divide करना है, increase के लिए आपने multiply करना है. तो inverse relation कौन सा बन रहा था हमारे पास? Question number 10 को देख लो. Question number 11 को देख लो. Okay, यहाँ पे देख लो. So we need to find the relation between men and R. So if you increase the number of men, then the working hour will indirect relation. So if you increase this, then this will get decreased. तो आपके पास men कितने? 3 men will take how many hour? 10 hour. So if you decrease this up to 1, then this should be increased. Okay, ये आपका increase होना चाहिए. तो increasing के लिए हम क्या करते हैं? Multiplication करते हैं. So if you decrease it to 1, then this will become 30. 3 times 10 is 30 hour. Okay. अब 7.5 आ रहे हैं. Sorry, this will become 30 men for 1 hour. We need to find 1 for 1 hour. This will be 1 hour, and this will
ये रिलेशन आपका कुछ इस तरह हो जाएगा कि if you decrease this to 1 hour, then this should be increased. Okay, inverse relation. So this will be, for increasing we will multiply, this will become 30 man. So 1 hour, this 30 man will work. For 7.5 hour, so if you increase it up to 7.5 hour, then this should get decreased. You increase this from 1 to 7.5 hour, they should get decreased. तो decreasing के लिए आपने divide करना है, तो 30 divided by 7.5 कर लो. So from this you will get 30 divided by 7.5. You will get 4. So 7.5 are 4 men will work. So ये आपने करना है inverse relation के लिए, okay? अब 3 variables के लिए आए. 3 variables के लिए हम क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर 21. स्क्रीन ब्लैक है. अच्छा. So in this case we will need to find the relation between men, hour and days. Okay. So 6 men will work. Last time हमने कौन सा किया था? This one, 12, question number 12. इसको कहते हैं 12 की तरफ आते हैं. So men are a meter. Men meter and days. So 6 men will dig 3 meter for in 4 days. The question is how many 10 men, okay, 10 men will dig a hole that is 7 meter in how many days? Okay, this is the question. So first of all, you will need to find the relation between men and meter. Okay. जितने मैन उतने कम मीटर, जितना ज्यादा मीटर. नहीं, जितने ज्यादा मैन होंगे उतने ज्यादा मीटर होगा. There is a direct relation between men and meter. Okay, जितने ज्यादा you should keep this constant. Okay, ये आपने constant रखना है. Okay. Yeah. So if the number of days is 4 and if you increase the number of men, then the जो unknown, अच्छा से ये जो unknown होगा वो constant रखेंगे, फिर उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. yeah. सर मैं पता नहीं क्यों पेंसिल की यूज नहीं कर सक रहा. मतलब वो जो पेंसिल वाली चीज है जिससे लिखते हैं वो आई नहीं रही. Rejoin. और मैं अपनी रीजॉइन कर लूं. सही. Wait. अब चेक कर लो. अब आ गया. ओके. सो जो अननोन है उनको आपने राइट साइड पे लिखना है. ओके. और उनको आपने कांस्टेंट रखना है. ओके. फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू कीप दैट कांस्टेंट एंड यू विल राइट दैट ऑन द राइट हैंड. तो मतलब जो 3 वैल्यूज में फाइंड करना है वो कांस्टेंट हो जाएगा. या वो कांस्टेंट हो जाएगा. तो अब और फिर इनडायरेक्ट का अब देखना कि ये दोनों इनडायरेक्ट हैं या डायरेक्ट हैं. अगर डायरेक्ट हो तो a इक्वल्स टू k b हो जाएगा. अगर इनडायरेक्ट हो तो a इक्वल्स टू k ओवर b. या आप ये कांसेप्ट यूज कर लिया करो, क्योंकि ये कांसेप्ट जो है ना, ये अभी जो आज के क्लास में मैंने डिस्कस की, इसके थ्रू आप 2 वेरिएबल्स वाले प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो, 3 वेरिएबल वाले प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो. जो हमने तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं. या हमने कल जो डिस्कस किया था, तो उसके थ्रू हम 2 वेरिएबल वाले प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. 3 भी तो हो सकते हैं. 3 वेरिएबल वाले वहां पे फिर वो थोड़ा सा वो हो जाते हैं, वो कंफ्यूजन हो जाता है. एक्सेस स्टूडेंट को फिर कंफ्यूजन होता है. तो ये कांसेप्ट आप यूज कर लिया करो. तो इसके अकॉर्डिंगली आप 2 वेरिएबल्स भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो. तो फिर इसका अननोन कैसे फाइंड करेंगे? So there is a direct relation between men and meter. Okay.
Like if you increase this man, then the meter will get also increase. Okay. So इसको मैंने decrease करना है 6 को, तो इसको भी decrease करना पड़ेगा. So if you want to bring 6 to 1 man, so then this will be equal to decrease के लिए हम divide करते हैं, तो 3 divided by 6 हो जाएगा. Okay. Okay. अब क्या करना है? Second, how long will it take 10 men to dig a hole 7 meter deep? So if you want to bring 7 over here, like if you increase 1 up to 10, then you will multiply this by a 10. 3 divided by 6 times 10 हो जाएगा. You increase this, then you should also increase this. For increasing, you will multiply it. So इससे क्या आएगा? 5 आ जाएगा. इसमें ये नहीं कर सकते, क्या कहते हैं हम, 10 men multiplied by 10 over ये क्या है 7 meters equals to k, फिर 1 होना चाहिए, तो 10 over 7 is the days. आप इस तरह कर लो कि चलो इस तरह कर लेते हैं कि इस मीटर को कर लेते हैं. मीटर को आप ये इसको 1 कर लो. ओके, तो ये डिक्रीज हो जाएगा, तो ये 6 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा. चलो मीटर को कर लो, कोई बात नहीं. मीटर को 1 कर लो, तो 3 से मैं 1 कर रहा हूँ, तो इसको भी डिक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है. तो 3 को 1 कर लो, तो ये भी डिक्रीज करना पड़ेगा. सो 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2 मैन आ जाएगा. ओके, फॉर 1 मीटर 2 मैन विल रिक्वायर्ड. अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, उन्होंने क्या 7 मीटर. सो 7 यहाँ पे 7 लाने के लिए मुझे इसको इंक्रीज करना पड़ेगा. सो सिमिलरली वी विल आल्सो इंक्रीज दिस. सो 7 times 1 is 7, 7 times 2 is 14. So for 7 meter you will need 14 men. अब आ जाते हैं डेज की तरफ. यहाँ तक समझ आ गया आपको? थोड़ा सा ये उसी तरह है जिस तरह हमने ये किया था. आप वो जो लास्ट क्लास में हमने रिलेशन किया था उसको भूल जाओ, वो उसको ना ये इसको लाइक ये जो आज मैंने डिस्कस किया है इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है. ये ऊपर जो डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन मैंने जो डिस्कस किए. मैं इस पे YouTube वीडियो देख लूंगा. ये प्रोपोर्शन है ना, ये प्रोपोर्शन है ना. यस. अच्छा यहाँ पे देख लो, मैं दोबारा समझा देता हूँ. ये काफी इजी मेथड है. यूट्यूब पे भी आपको इधर उधर की वीडियोस मिलेंगी, लाइक वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे. यहाँ पे देख लो, डायरेक्ट रिलेशन मींस फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड टू फाइंड द रिलेशन. डायरेक्ट रिलेशन या इनवर्स रिलेशन. तो केंस और कोस का डायरेक्ट रिलेशन बनना है. इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ केंस देन द कोस विल गेट इंक्रीज. तो यहाँ पे भी आपने इफ यू इंक्रीज दिस एरो, मैंने अब एरो मींस कि इफ यू इंक्रीज दिस देन दिस विल आल्सो गेट इंक्रीज. तो इट मींस कि नीचे के लिए भी आपने एरो सेम बनाने हैं. ओके. अच्छा अब क्या करना है? ये बाद में कर लेंगे, ये मैं भी कर लूंगा, फिर अगली क्लास तक कर लूंगा. अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट. अच्छा ये मैं क्वेश्चन सोल्व कर लेता हूँ, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लो. सो आफ्टर दिस क्लास यू विल चेक दिस. ओके, आराम से आप देख लेना. एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन वी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट क्लास. ओके. अच्छा यहाँ पे कौन सा है सेकंड आपके पास क्या आ गया? सेकंड पार्ट देख लो. 7 मीटर 10 men. ओके, एंड डेज इज अननोन. सो यहाँ पे 7 मीटर इफ आई कीप दिस सेम, पहले मैं डेज को सेम कर रहा था, अब इसको मैंने सेम रखना है. मेन को मैं सेम नहीं रख सकता. क्यों नहीं रख सकता? दिस इज 14 एंड यहाँ पे उनका जो डिमांड है दैट इज 10 men 7 मीटर. तो इसको अब मैं 7 मीटर नीचे कंडीशन के लिए भी रख लेता हूँ. दिस विल बिकम 7 men. नाउ आई विल नीड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन men एंड नंबर ऑफ डेज. इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ men then the number of days will get decreased to cover one complete building. Got it? So it means that there is an inverse relation between men and days by keeping the meter constant. Got it? अच्छा अब क्या करना है यहाँ पे? यहाँ पे days कितने थे? 4 थे. Now I want to bring 1 over here. So there is an inverse relation between men and days. So if you increase this, then this will get decreased.
Or if you decrease this, then the other will get increase. If you decrease this, then this will get increase. So यहाँ पे 1 के लिए if you decrease it up to 1, then it means that you will increase this. So increasing के लिए हम multiplication करते हैं तो 4 times 14 हो जाएगा. अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, 10 मैंने. So if you want to increase 1 up to 10, so यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, you will decrease this. क्योंकि इसको आपने इंक्रीज करना है, so this will get decrease because of the inverse relation. So 4 times 14 divided by 10 आ जाएगा. So 10 men for 7 meter hole, you will require how many days? 4 divided by 10 times 14. So that is 5.6. And answer check कर लो, 5.6. So you will need 5.6 days. And answer check कर लेते हैं. Okay, 5.6 days. यहाँ पे देख लो.